صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے نا، مطلب کہ انہوں نے قرآن سے نکال دیتے ہیں چیزیں کہ یار یہ دیکھو، یہ یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے۔ جیسے وہ آیا امتیاز آیا بات کرنے، تو وہ کہتا ہے قرآن کے اندر نبی بھی لکھا ہے، رسول بھی لکھا ہے، تو یہ تو قرآن کا تضاد ہوا نا، قرآن کے اندر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی بات یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی انصر رضا صاحب پہ یہ وہ لگا رہے ہیں نا الزام، یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کے اگینسٹ گئے ہیں، تو وہ بندہ بھی جو ان سے بات کر رہا تھا نا، نائٹ رائڈر، وہ بھی یہی کوشش کر رہا تھا وہاں پہ نا، کہ آپ کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے تھے مصدق رسول بن کے تورا کے یا حضرت موسیٰ کے۔ اسی طرح قرآن نے وہ پرنسپل بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کی مثال دی ہے، اور پھر آگے پرنسپل بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب والا رسول آتا ہے، شریعہ والا رسول آتا ہے، اس کے بعد ایک مقدس جو ہے نا تصدیق کرنے والا مصدق رسول ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مثال دی تھی قرآن کے اندر سے حضرت عیسیٰ کی۔ ابھی بھی یہ جو دلدہ جانی صاحب ہیں، یہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو نائٹ رائڈر کر رہا تھا، کہ وہ جیسے مثال دی سیفی بھائی نے حدیث سے 2 مٹکے شراب کی، لیکن وہ کہنے لگ گئے نہیں 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 نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو، وہ کہنے یہ حدیث کہہ رہی ہے نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو۔ جیسے ابھی وہ مرزا انجینئر نے مثال دی بائبل سے، کہ کرسچن کیا سمجھتے ہیں، یا وہ کیا لکھا ہوا ہے ان کی بک کے اندر، کہ عیسیٰ کے بعد پتہ نہیں جو بھی آئے گا وہ بیسیکلی دجال ہوئے گا، اور وہ دعویٰ نبوت کرے گا عیسیٰ کے بعد۔ لیکن 295 کس پہ لگ گئی؟ مرزا انجینئر کے اوپر، لیکن اس نے پڑھ کے سنایا تھا ان کا عقیدہ۔ اسی طرح یہ جو دلدہ جانی صاحب ہیں، یہ بات لگا رہے ہیں یہ حضرت مرزا، وہ کوشش کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات میں اور انصر رضا کی بات میں، بھائی کی بات میں کنٹراڈکشن پیدا کرنے کی نا، لیکن انہوں نے وہ ادھر بار بار وہ بیان کرتے رہے۔ آپ لوگ ریکارڈنگ بھی سن لیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کر دیتے ہیں کہ مطلب کہ چیزوں کو ایسے آگے پیچھے کریں گے، دجالیت ایسی کریں گے نا کہ آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، آپ ریکارڈنگ بھی سن لینا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر لکھا ہے، یہ قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ جی کریں بات۔ جی یہی میں نے بھی، یہی میرا پوائنٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی بات ہے، تو گویا مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو مسیح بن کر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اعلیٰ ترین روحانی مقام رکھنے والے خاتم الخلفاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے بھی سردار اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، جو خود مسیح بن کے آئے، انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی، اور انصر رضا کو سمجھ آ گئی ہے پوائنٹ، یا کسی اور کو سمجھ آ گیا۔ اچھا اچھا جی، اب میری بات پوری سن لینا۔ ہاں ہاں، اس بات کا جواب لے لینا، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے نا۔ نہیں نا، آپ تو پھر میں آپ کی بات کا جواب تو نہیں دے رہا تھا، میں نے آپ کو چپ کر کے سنا۔ نہیں، ابھی میں آپ یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات آپ ایسی دیکھیں، آپ ہے۔ دونوں کی بات میں تضاد ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ بارش کی طرح ان پر وحی ہوئی، ٹھیک اور ہے قسم کھا کے انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ باتیں جس کے وہ خود مصداق تھے، جن باتوں کے، وہ باتیں انہوں نے بیان نہیں کی، لیکن آپ کو پتہ چل گئی کہ وہ وہ مرزا صاحب جس کے مصداق تھے اس کو ان کو بیان کرنا نہیں آیا، اور آپ کو پتہ چل گیا۔ اچھا یہ تو بات خود سنیں نا، بات سن لیں، بات سن لیں، آپ کی بات تضاد وہی بتا پوائنٹ ہے رہے آپ ہیں کا۔ آپ خود ہی۔ آپ یہ انکار کر دیں، آپ یہ انکار کر دیں نا، آپ یہ قرآن جو ہے کیا وہ مطلب کہ اس میں یہ بات نہیں لکھی، آپ انکار کر دیں، آپ کے قرآن میں چیز لکھی نہیں ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کا فہم کیا ہے؟ وہ فہم اس فہم کو یہ ملتا ہے، سیدھی سی یہی بات بات لکھی وہ ہوئی ہے وہاں حضرت پہ، مسیح علیہ سیدھی سی السلام نے بات لکھی ہے، لکھی ہوئی ہے جس کو کہ خدا تعالیٰ حضرت وحی سے عیسیٰ جو بتاتا ہے تھے نا، وہ علم دیتا ہے۔ مصدق رسول تھے تورا کے، ہاں، تو یہ تو سیدھی سی جس کو بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کا تو فہم آپ مرزا بتا صاحب نے دیں، کیا لکھی ہے اس ہوئی کا ہے یہ فہم؟ بات کہ وہ مصدق رسول میں ہوں، انہوں نے کہا ہے۔ نہیں، آپ بتا دینا، آپ اس کا فہم بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کا یہ فہم بتا دیں۔ حضرت مصدق تو سارے ہی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو پھر اس میں وہ مساق اعتراض النبی۔ کس چیز کا رہ گیا؟ اب ہم بھی ہاں تو میری بات سنیں نا، میں بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ ہاں جو مساق النبین کی آیت ہے اس میں جو مصدق رسول، ویسے تو ہم سارے مصدق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ سچے رسول تھے جو ہم ان پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس خاص رسول کی، ایک رسول کی جو مصدق رسول مساق النبین کی آیت میں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رسول حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ رسول جو ہے
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو اور تمام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ انہوں نے ثابت کیا اس میں، اسی آیت کی کانٹیکس میں. یہ بات جو انصر رضا صاحب نے کی، یہ مرزا صاحب نے نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا فہم مرزا صاحب کو تو پورا نہیں دیا گیا، انصر رضا کو دے دیا گیا ہے. اچھا بات سنیں، انصر رضا بتائے بات اس سن کو لیں، کون سی وحی ہوئی ہے؟ دلدہ جانی صاحب بات سن لیں. دلدہ جانی اچھا. صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں. آپ وہ بات آپ بھی وہی کتب کی طرف سے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس آیت سے ویسے کیا سمجھا کہ اس آیت میں اس میں ایک خاص رسول کا ذکر ہے؟ جی، ایک رسول کا ذکر ہے جو نہیں، مصدق اس میں ایک خاص رسول کا تو ذکر ہی نہیں ہے. رسول کو کہا گیا کہ آپ نے اس کے اس میں متعلق الرسول نہیں ہے، بتانا ہے. اس میں الرسول تو لکھا ہی نہیں ہے، ایک خاص رسول کا تو اس میں ذکر نہیں ہے. اس میں تو رسول مرزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہی لکھا یار ہے. میں آپ کو انہوں نے جس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے وہ کانٹیکسٹ بیچ میں سے اس کو چھیڑ رہے ہیں نا آپ اس کو. وہ تو وہ نکال دیے انہوں نے نا. میثاق النبیین کی آیت کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس کی تشریح کی، یہ بات اچھا ہم بات کر رہے سنیں ہیں. نا، بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول کی تشریح کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بھی مصدق رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ کے بیان میں، آپ کی جو بیان ہے نا، آپ کا بیان ہے، ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا نا. اچھا اب آپ کا جو بیان ہے نا، آپ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں ہر رسول کو مصدق رسول سمجھتا ہوں، پھر کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک رسول ہی مصدق رسول ہے. یہ آپ مطلب آپ کے اپنے فہم میں ڈواڈول ہوئے ہیں آپ. بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ میثاق النبیین کی آیت آل عمران، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا 81، اس میں ہاں جی. مصدق رسول کا فرمایا گیا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ کہا گیا تھا کہ اس پر تم نے ایمان لانا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبیوں کے ذریعہ امتوں کو یہ ان کی حکم دیا گیا، کیونکہ ظاہر نبی تو فوت ہو جاتا ہے، اس کی امت رہ جاتی ہے. تو ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے یہ حکم پا کر کہا کہ جب یہ رسول آئے گا تم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ رسول جس کے متعلق کہا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں وہ رسول مرزا صاحب ہیں. تو جو مرزا صاحب خود اس کے مصداق ہیں اگر، تو انہوں نے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ آپ پھر حکم و عدل کو ماننے کے بعد دجل کر رہے ہیں آپ. حکم و عدل تک ہی رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. 2 منٹ اجازت دیں گے؟ اجازت ہے بھائی؟ جی 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 ملک صاحب کریں، بات کریں. جزاک اللہ جزا. دیکھیں قرآن جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن میں جو ہے اور جو بات آئی ہے کہ ایک مصدق رسول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی. ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن ہر نبی آنے والے نبی کی بشارت دے کے جاتا ہے، کوئی نشانی دے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدق رسول کی نشانی دے کر گئے اور پیشن گوئی فرما کر گئے کہ میرے بعد امام مہدی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ آئے گا. مسیح ابن مریم بھی کہا اسے. یہ دونوں صفاتیں ہیں، مسیح بھی صفات ہے اور قرآن کے مطابق مریم بھی مومن لوگوں کے لیے ایک صفت ہے. یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی حدیث فرمائی. پھر انہوں نے بڑھا چڑھا کر سرکاری مسلمانوں نے زبردستی اپنے عقیدے کی وجہ سے ساتھ عیسیٰ لگا لیا، حالانکہ حدیث یہ ہے مسیح ابن مریم. تو انہوں نے اپن کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ملا دیا، حالانکہ حدیث یہ. تو مصدق رسول قرآن کے مطابق مرزا صاحب بھی ہیں. جو بھی رسول آئے گا وہ مصدق ہی ہوگا، کیونکہ تعلیمات مکمل ہیں. ابھی ایک ہی کی بشارت تھی، لیکن اس کے بعد رسول کے ذمہ ہے. رسول اپنے بعد آنے والے نبی رسول کی، مصدق نبی رسول کی بشارت دے کے جاتا ہے اور پیشن گوئی کر جاتا ہے. وہی کیے کیا نام ہے ہر نبی نے. اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی فرمائی ہے کہ میرے بعد سارے بھائی جو ہے نا ریکارڈنگ سنیں، یہ ریکارڈنگ سنیں انصر رضا صاحب کی. لگتا ہے انہوں نے پوری بات سنی نہیں ہے. انہوں نے وہی سنا ہے جو کہ انہوں نے ان کو عامر نذیر نے سنایا ہے. وہ پوری بات سنیں، اس میں وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ بدزنیاں کرنی کا مقصد ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، آپ ایک دیکھیں، آپ جب جس کے اوپر میں اعتراض کر رہا ہوں آپ خود وہ بات دہرا رہے ہیں. کون سی بات؟ انصر رضا نے وہ بات کی جو مرزا صاحب نے نہیں لکھی ہوئی.
यही मेरा और कहने का यार मकसद है। अंसर रजा साहब ने वही, देखें बात सुने आप देखें, आप दो बातों को ना मिक्स कर रहे हैं। अंसर रजा साहब की जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको फिर समझ आएगी। अब आप जमात अहमदियत या खिलाफत अहमदियत की मुखालफत में ये हरकत कर रहे हैं, और उसका खिलाफत कोई फायदा अहमदियत का नहीं। तो मैंने यार जिक्र भी नहीं ठीक किया। है, आप ऐसे आप वो मैं आपको बताता हूँ, वो अंसर रजा साहब खिलाफत अहमदिया के अंडर ही आते हैं ना। तो मैंने ठीक उसका है, तो जिक्र ही नहीं किया। मैं आप तो अंसर सिर्फ रजा साहब की उसकी बात, दुश्मनी में आप वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन आप अब अगर देखे पूरी ना रिकॉर्डिंग खाम खा सुनेंगे एक ना। बदजनी शुरू कर दी। तो आप अब बात सुन ले दुश्मन दिलदा जानी साहब, बात सुन ले, भाई, बात मैं सुन ले, मिर्जा बात साहब सुन ले, की आपको बात बात कर समझ रहा आएगी। हूँ। मिर्जा बात साहब को सुन तो ले आप भी जरा, मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बात तो सुन लेना, फिर बात सुन ले, आप बात सुन ले। इस देखें, एक दफा ना मैं बात कर रहा था अमर नजीर से, तो आप आए, आपने आके वो बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। जब आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना अंसर रजा साहब की, आपको फिर बात की समझ आएगी। वो टोटका ना सुने जो आपको अमर नजीर ने सुनाया है। भाई मैंने ठीक खुद है, सुनी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ, वो पूरी रिकॉर्डिंग सुने, उन्होंने यही बताया है उधर, उन्होंने यही बताया है कि जो मिर्जा साहब ने बताया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो कुरान में ये है कि हजरत ईसा जो थे, उसकी हजरत ईसा की एग्जाम्पल दी गई है, और फिर बताया कि वो मुसद्दक रसूल थे तोड़ा के। ठीक है, इसी तरह जो मिर्जा साहब हैं, किताब दी गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो मुसद्दक रसूल है कुरान के। तो तो आप ये जब जो पढ़ेंगे ना, मिसाकुन नबीन वाली आयत है, उसमें मिर्जा साहब का जिक्र है। यार उसमें मिसाकुन एक नबीन एक खास आले रसूल का इमरान जिक्र है। 81, उसमें मिर्जा साहब का जिक्र है। यार उसमें तो किसी एक खास रसूल का तो जिक्र ही नहीं है। भैया मिर्जा, जिक्र ही नहीं है। देखे हाँ, ना, उसमें- मैं आपके फहम की, अपनी फहम की तो बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, हजरत दिलदा मसीह जानी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या बात लिखा? सुने, बात सुने। वो जहाँ पे तफसीर लिखी है, वो मुझे वो बताएंगे, वो किधर लिखी है? मैं जाके उसको पढ़ लेता हूँ। वो दो जगह पे मैं भी की है खोलता हूँ, मैं भी हज़म खोलता हूँ, हाँ। मैं भी खोलता हूँ, हाँ जी, मैं भी आप खोलता हूँ। खोलें। हज़म सिंह ने हाँ। दो जगह पे वो की है, वो बताते नहीं हैं। नहीं, आपको दो जगह जाने की जरूरत नहीं। आप नहीं, दो जगह क्यों नहीं जाने की जरूरत? मेरी जहाँ बात पे सुनिए ना, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। तफसीर मसीह मऊद आले इमरान, वो आप जाके देखें। वहाँ पे वेबसाइट पे alislam.org वेबसाइट पे आप जाएं। वहाँ पे जहाँ जहाँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उस आयत की तफसीर लिखी ना, वो सारी बातें वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वो ठीक लिखी है ना उन्होंने, कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, सारे नबियों के मुसद्दक रसूल, लेकिन वो दूसरे जो रसूल भी आए हैं, वो भी इस सूरा के मुताबिक, आयत के मुताबिक ही आए तो हैं। वो ये तो हम इसमें बात ही क्या नहीं कर गलत रहे। बात है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं आयत मिसाकुन नबीन वाली आयत आले इमरान में, उसमें किस मुसद्दिक रसूल का जिक्र है? अंसर रजा साहब ने कहा इसमें मिर्जा साहब का जिक्र है, लो मैं जो कि मिर्जा- दुरुस्त बात नहीं है। मिर्जा साहब क्या मुसद्दक रसूल नहीं थे? फिर वही बात, नहीं है अभी मिर्जा मैंने साहब कहा मुसद्दक हर रसूल। शख्स मुसद्दिक है, लेकिन हाँ, तो उस फिर- खास बात, उस खास उसमें आयत कहाँ में लिखा जिसका है, जिक्र है, उसमें उसकी खास बात कर रहे हैं रसूल, भाई। खास रसूल मतलब कहाँ लिखा है कि खास? वो तो सारे नबियों के लिए है वो आयत, कोई भी तो ये मुसद्दक आपने रसूल है कहाँ से उसके ले लिए लिया? आयत है सारे वो। नबियों के लिए है वो। तो वो मिर्जा साहब आप नहीं समझते कि वो आयत मुसद्दक रसूल सारे नबियों के लिए है? भाई मैं जो भी क्यों मुसद्दक समझूं? रसूल आया है। मुझे कौन सा कुरान का इल्म दिया गया कि मैं समझूं ये मेरे और ख्याल यार में ये? कुरान बता रहा है, खुद हजरत बता रहा है मसीह कुरान। मौद को इल्म दिया गया भाई, कुरान तो खुद यार ना मसीह आपको वो दिया गया ना बात मुझे ठीक दिया है। गया। और यार वो भी जैसे आप मुझे बताएं हजरत आप, मसीह मौद को इल्म दिया गया खुदा ताला की तरफ से। अच्छा कुरान हमें नहीं में दिया गया। कितनी आयत है जिसमें मोहम्मद है और मिर्जा साहब ने कहा ये मुझे कहा गया है? हाँ, तो बरूजी तौर पर वो हैं, मोहम्मद फिर भी इधर हैं, इधर अहमद भी आपको हैं, इधर आपको खातमुल समझ नहीं आ अंबिया रही भी इस हैं। बात, आपको हैं? इधर इस बात की समझ नहीं आ रही, इस बात की इधर आपको क्या समझ नहीं आ रही? मतलब कि ये आयत जो है ये सिर्फ उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो होनी ही होनी है, वो तो कन्फर्म बात है जो मिर्जा साहब ने लिखी है, लेकिन हाँ। ये किसी भी तो मुसद्दक उतनी ही रसूल के बात लिए है भी बस। अप्लाई करती इससे है। आगे बढ़ेंगे तो आप हकम अदल का इनकार करने वाले बनेंगे, क्योंकि आप अपनी तरफ से नया फहम और इस्तेमाल भाई बीच मेरे, में बता आप रहे हैं। मुझे ये बताओ ना, कुरान की आयत में जहां पे मोहम्मद पुकारा गया है, मिर्जा साहब ने वो कहा है या नहीं कहा कि मैं मुझे पुकारा गया है? तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैंने तो thing कहा है। है वो बरूजी तौर पर हैं, हाँ, तो बरूजी फिर तौर पर इधर वो भी हैं। जब ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है तो मिर्जा साहब के लिए क्यों नहीं है? तो मिर्जा साहब ने क्यों नहीं कहा? फिर ये आपको ज्यादा पता चल गया उनसे। यार वही हाँ, बारिश ये की यार तरह आपकी आपको ये कि मिर्जा साहब कोई थी। और आप खुद कह रहे हो, आप खुद मान रहे हो मिर्जा साहब, और यार यही तो वही हरकत आप कर रहे हो जो सरकारी करते हैं ना। आप खुद कह रहे पता हो नहीं कि क्या हाँ मैं सारे हरकत कर, नबी, यानी मैं आपको मिर्जा साहब की तालीम की तरफ बुलाता हूँ तो मैं सरकारी हो गया। और यार देखो ना कैसे, देखो बात सुनो दिलदा जानी साहब, बात सुने,
सुनाए। वो भी कहते हैं कि ये मिर्जा साहब ने किताब में लिखा है, ये मिर्जा, जैसे मैं हुसैनी से बात कर रहा था ना एक दफा, हुसैनी मलून से, तो भाई वो उनसे कहता बात है, ना करें जो मिर्जा साहब के मुनकिर मैं हैं, बताता हूँ, उनसे हमें क्या ताल्लुक। मैं बताता हूँ भी, एक बात सुन लेना जरा, मैं बताता हूँ आपको। हुसैनी मलून ने बताओ मेरे साथ क्या किया। एक दफा कहता है कि तुम्हें ना इस पे अमान लेकर आओ कि हजरत मूसा जिंदा है आसमानों पे। मैंने कहा हुसैनी साहब ये बात ऐसे नहीं लिखी हुई जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। वो कहता है ऐसे ही लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यही लाइन है और यही लिखी हुई है कि हम पे फर्ज हो गया है। मैंने कहा हुसैनी साहब, मैं किताब खोली, मैंने वो पढ़ा, मैंने पढ़ के मैंने कहा यार ये बात एक उन्होंने वैसे एज अ एग्जाम्पल दी है, या एक वैसे उन्होंने दो चीजों का तकाबली जायजा लिया है, ठीक है। वो माने ही ना, वो कहे नहीं ये मानो, आप भी वही कर रहे हो मेरे साथ इस वक्त, हमारे साथ, कि मिर्जा यार साहब ने मैं ये आपको लिखा है, मिर्जा साहब इसी की को तालीम की मानो। तरफ बुला रहा हूँ, आप कहते हैं मैं तो आपके मिर्जा साथ जो साहब कर की रहा हूँ। तालीम जैसे आप सरकारी बुलाते हैं ना, मैं कि ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो इसको ऐसे ही मानो, तो आप हाँ वही तो हरकत कर और रहे हो। कैसे मानेंगे, जो लिखा हुआ है वही मानेंगे। जैसे वो कि अमर कुछ और नजीर ने तरीके से उसने किया ना, मानेंगे। आपके होते हुए किया ना उसने, कि मिर्जा साहब ने कहा मैंने तो कसम उठा दी, उन्होंने झूठ बोल दिया, उन्होंने नौजबिल्ला जज के सामने जाके कि मैंने तो मोहम्मद हुसैन मुतालवी को या इसके खानदान को ये बात की यार ही नहीं देखें है। क्या आप इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं। मैं हम एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें इररिलेवेंट क्या है? आप वही जैसे इररेलेवेंट वो है, हम मखसूस आयत जैसे की बात कर जैसे रहे हैं। वो इतराज करते हैं वैसे ही आप इतराज कर रहे हो। मैंने किया तो मैं तो ये कह रहा हूँ मिर्जा साहब देखिए की भाई, तालीम की आप तरफ एक आए तरफ भाई। से कह रहे हो, एक तरफ से कह मिर्जा रहे हो साहब कि की हाँ तालीम की तरफ हर आए, नबी, अपना फहम ना बीच में लाएं। मैं तो ये कह भाई रहा हूँ। मैं अपना फैम पे तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपके फैम पे बात कर रहा हूँ। देखिए आपने मिर्जा मुझे साहब अभी कहते बोला है, हैं आपने अभी मुझे बोला है भाई, देखिए मिर्जा साहब मेरे कहते भाई, हैं मेरे मुझे बड़े एक भाई मेरी बात सुन ले, मेरे समावी आप, आदमी मानो जो अच्छा आप मेरे तशरीह अब्बू मैं से भी कुरान बड़े की हैं, मेरी करूंगा बात वो सुन सही ले, होगी, जिस मेरी हदीस बात को सुन, मैं सही कहूंगा वो सही होगी। मिर्जा साहब तो ये दिलदा कह रहे जानी, हैं। दिलदा जानी साहब मेरी बात सुन ले, आप मेरे बड़े हैं, मेरे अब्बू से भी बड़ी है आपकी उम्र। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आपने मुझे अभी बोला है, आपने मुझे मेरी अभी बात कहा ना है, करें, मिर्जा साहब की बात करें। आपने मुझे, यार फिर आप अपनी बात ना करते, आपने अभी बोला है रिकॉर्डिंग मैं तो सुनो, आपने यही कहा कह हर रहा हूँ नबी, मिर्जा साहब ने ये लिखा हुआ है, मैं आपने अपनी बात अभी खुद कर बोला रहा हूँ। है कि हर नबी मुसद्दक रसूल है, हर नबी मुसद्दक है, हाँ जी। तो वो हर आयत में किसी एक हर खास इंसान रसूल का तो मुसद्दक जिक्र है, ही नहीं। हर तो उम्मती मुसद्दक है, लेकिन हाँ, हम बात कर रहे हैं ये जो तो हजरत ईसा आयत मुसद्दक नहीं थे, मिसाकन नबीन है उसमें किस रसूल का जिक्र है। हजरत ईसा मुसद्दक नहीं थे। ये हमारी डिस्कशन है, मैंने तो अभी आपको कहा है सारे मुसद्दक होते हैं, अच्छा मुझे ये लेकिन इसमें 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 अहमद में किसका जिक्र है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये जो मोहम्मद दूसरी जगहों पे लिखा हुआ है उसमें किसका जिक्र है कुरान के मुताबिक, कुरान में? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मिर्जा साहब ने क्यों कहा है कि ये मेरे पे आयत नाज़िल हुई तो है, मिर्जा इसमें साहब मुझे ने कहा मोहम्मद क्या बरूजी किया है? तौर पर, बरूज आपको तो पता क्या इधर होता भी है। यही आपको इधर समझ नहीं आ रही इस बात की आपको, कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, वो तो सारे नबियों के मुसद्दक है तो ही है। आपको मेरा पॉइंट ही नहीं इतनी देर से समझ आया। तो आप मैं कह खुद, रहा हूँ हाँ, जो मिर्जा साहब ने लिखा है उससे आप आगे क्यों बढ़ते हैं। हम मानते हैं मिर्जा साहब की बात को, तो क्यों लेकिन बढ़ते क्या हैं फिर आगे, दूसरे नबी जो जो हैं, उन्होंने बयान किया वही बयान करें। अच्छा बात सुने ना, फिर जो दूसरे नबी हैं वो मुसद्दक नहीं है? तो आयत जो मिसाकुन नबीन है उसमें हाँ, दूसरे नबियों का जिक्र है। तो सारे उसमें किस खास नबी का जिक्र है? हाँ मिर्जा साहब ने कहा कैसे? खास नबी का जिक्र है, मिर्जा जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत तो मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम भाई तो, हैं ही हैं तो आगे क्यों जाते हैं, बस खत्म कर दें वहां पे, फिर है आप ही क्यों हैं जाते हैं आगे? बस। आप क्यों कह रहे हैं कि आगे क्यों बाकी जा नबी रहे भी हैं, मुसद्दक जब हैं? मिर्जा साहब ने जब नहीं ये बात लिखी आप क्यों आगे जा रहे हैं। आप ये क्यों 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 जाते हैं, आप क्यों जाते हैं आगे? आप क्यों कहते हैं कि बाकी नबी भी मुसद्दक हैं? क्यों तो कहते हैं मैं आप? कब कहता हूँ कि मिसाकुन आपने नबीन अभी के बोला है कि मुताबिक। सारे नबी मुसद्दक हाँ हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा है, मैं तो कह रहा हूँ मिसाकुन नबीन वाली आयत में हाँ, मिर्जा साहब ने फरमाया है कि इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं ठीक है, और तमाम नबी उनके उम्मती हैं, ठीक है, और उन्हीं के मुतल्लिक हर एक नबी को से ये वादा लिया गया था कि तुम जब वो रसूल आ जाए तुमने उस पर ईमान लाना है। वो कौन ठीक है। रसूल है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तो कोई भी अगर कोई दूसरा जो रसूल आया उस उनके कोई दूसरा रसूल आता था, तो ये तो अच्छा, जब ये मसाकुन नबीयीन का वादा लिया गया ना, ठीक है, सारे नबियों से लिया गया ना आपके मुताबिक, हाँ तो बिल्कुल। जब भी कोई रसूल आया है किसी और रसूल के टाइम में, तो उसको नहीं था ये हुक्म अल्लाह का कि वो उसको उसकी तस्दीक करे या उसको माने कि ये मुसद्दक रसूल है दूसरा भी? भाई सबको ये हुक्म था कि वो जो रसूल आएगा ना, यही बात तो अनसर रजा साहब कर रहे हैं कि जो नबी हैं वो एक दूसरे के भी मुसद्दक थे, जैसे हजरत लूत की कौम में हजरत मिर्जा साहब ने कहाँ इब्राहीम। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है मिर्जा साहब ने तो इस यार आयत की तशरीह में? हाँ
इस आयत की तशरीह में लिखा है उन्होंने ओ ये यार, बात? आपकी खुदा की उन्होंने कहा कसम, आप हज़रत मोहम्मद सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि दुश्मने वसल्लम है। दुश्मनी अहमदियत में हो आप चलो आप मैं खुद दुश्मन, एक बात करके मैं उससे भाग आपको जाते हो मिर्जा यार। साहब की तालीम बता रहा हूँ, आप कहते हैं मैं दुश्मन हूँ, क्या ये बात है भाई? आप अभी कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि सारे नबी मुसद्दक हैं, सारे नबी मुसद्दक हैं। अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दक हैं। वो मिर्जा साहब ने तो वो लिखा है, वो ओ सही चन लिखा है, उसमें मक्खन, क्या गलत ओ लिखा है? चन मक्खन, मैं नहीं कह हाँ। रहा, मैं कह रहा हूँ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं। ओ मेरे आपको मेरे समझ नहीं आ रही मक्खन, बात की? मेरे मक्खन, मेरी गल सुन। आपने अभी बोला है कि सारे नबी मुसद्दक हैं, उफ, हद ही है। वैसे तो इतना मैं उसी मुश्किल है बात पे आपको मैं बात बात कर समझनी? रहा हूँ, तो आप आगे से वो कह रहे मैं हो कि कह रहा नहीं, हूँ सिर्फ मिसाकुल हज़रत नबीन मोहम्मद की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दक हैं। मिसाकुल नबीन की आयत में जो रसूल मुराद है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ, और हज़रत मसीह मौद तो अलैहिस्सलाम ने हम यही बयान मानते किया। हैं इस चीज को, तो हम जब तो मानते हैं मानते तो बस हैं। इतने यहाँ तक ही रहे ना, बस मैं यही कह रहा हूँ। तो आपने फिर आगे क्यों क्यों कहा जा कि रहे हैं? सारे नबी मुसद्दक हैं, बाकी नबी भी नहीं, मुसद्दक हैं? तो अंसर रजा तो कह रहा है इसमें मुराद मिर्जा साहब है। नहीं 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 नहीं, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। फिर आपको सिर्फ वो टोटा भाई सुनाया उसने गया सूरह है आज़ाब की आयत जिससे आप सिर्फ सुनाई। मुखालफत कर सकें। मैंने पूरी बात सुनी है उनकी, उन्होंने फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुसद्दक हैं। उन्होंने बात सुनो ईमान ना लेकर आए, यार, बाकी सैफी अंबिया। भाई ऐसे बात भाई अंसर रजा ने तो शुरू में कह देखें दिया था यार, मिर्जा दिलदा साहब जानी साहब, की रूहानी खजान से बात ही नहीं अंसर होगी। रजा साहब को हम लोग छोड़ तो दें, रूहानी खजान से भागते और हैं। दिलदा और नहीं जानी यार, साहब, रूहानी, अब आपने देखें ना आप अकायद किधर ऐसे किधर जा बनाए रहे हुए हैं। हैं कि और एक आपके मिनट टकराते हैं सैफी बातें। साहब, एक मिनट ठहर जो। हाँ जी, दिलदा जानी साहब, बात ये है कि अंसर रजा साहब को छोड़ दें, वो तो इधर है नहीं है। आप ऐसा करें, आप साहिब इल्म आदमी हैं, आप इस आयत का तर्जमा करें और हमें इसे समझा दें कि ये सिर्फ एक हाँ रसूल मैं का आपको नाम है। समझाता हूँ। इस हाँ आयत बशीर में, साहब, ये बता इस आयत दीजिए में, चौहान साहब हैं। जी 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 जी, चौहान साहब। अच्छा, जी, इस इस आयत आयत का में इसको पढ़ें। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है नहीं कि यार, आप इसमें, अभी बात सुने, पहले कुरान पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं जमसी मौद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। पहले कुरान आपको ये आयत इधर उसका तर्जमा करते हैं, उसमें आप हमें समझा दें कि इस आयत से बस एक रसूल यानी मुराद है। तर्जमा मैंने करना है उसका? तो आप ही जो क्लेम हजरत करने मसीह आए मौद हैं ना। अलैहिस्सलाम ने किया है वो हमारे लिए काफी यार नहीं वो है? हम अभी चले, आप वो तर्जमा कर दें। तो यही मैं इतनी देर से आपको हाँ, समझा कर रहा दें, हूँ कर दें, भाई, कर खुद दें। तर्जमा ना करें, हमें कहाँ इल्म दिया गया अच्छा, कुरान आप का? तर्जमा कर देना, अभी तशरीह की तो तरफ ना जाए। जब्बा साहब को दिया वो गया है ना, तो हजरत जब्बा मसीह साहब से मौद अलैहिस्सलाम आप करवा के दे दें हमें तर्जुमा। और जंबा साहब ने जब्बा कहा साहब को तो है, दिया गया है खुदा ना। की, जंबा साहब ने किधर कहा है खुदा की कसम मुझे हर एक जी रूह से ज्यादा इल्म दिया गया? हाँ, तो उनको फिर नहीं जब्बा दिया जब्बा गया। साहब अभी वो नहीं है, उनको वो इल्म क्या नहीं कहते दिया हैं, गया, नहीं, मिर्जा साहब को ममूरे दिया मुनल्ला गया। नहीं है जब्बा साहब, ममूरे मुनल्ला नहीं है। मामूर में नले तो उन्होंने ये दावा तो नहीं किया फिर कि उनसे मुझे पूछ कुरान लेना, का आप सबसे ज्यादा उनसे इल्म पूछे दिया कि गया। अल्लाह से पूछे वो कि इसका क्या हम तर्जुमा है। क्यों पूछे जब हमारे पास हकमो जब अच्छा करें ना आपने यार, मिर्जा साहब से आखिरी आगे ज़मान, आपने मिर्जा साहब से आगे एक बंदे को, शख्स को मान लिया है कि वो हाँ ममूरे मुनल्ला है, तो वो आप हाँ, बता सकता है ना, आप उसकी तो तालीमात बता दें हमें। चले नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जंबा साहब आप ने देखें कभी ना, नहीं जैसे कहा। आपने देखें, बात सुने ना, हजरत ईसा को क्रिश्चियनों ने माना ना, हजरत ईसा को, उसके बाद मुसलमान हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आ गई ना आगे। अब आप जंबा साहब की तालीम पे, आपने हमें जंबा तो साहब की क्या तालीम बतानी है कि आपने उनका जंबा क्या साहब को फहम है। आपने जंबा साहब को तशरीह नबी बना दिया कि पहली जो मर्जी, कैंसिल हो इस गई। वक्त वही खलीफा है ना दुनिया के अंदर सबसे बड़े। हाँ तो उनका हाँ, तो क्या फिर दावा है? उनकी तालीमात बता वो दें कह रहे हमें। हैं मैं छोड़े 15वीं वो सदी का तशरीही मुजद्दिद है, हूँ। वो नहीं है, लेकिन इस वक्त आपके मुताबिक यार सबसे आप जो, के देखे ना गैर मुतलका देखें, बातें नहीं कर नहीं रहे हैं। गैर मुतलका जंबा नहीं साहब भाई, का आप मैंने उनको नाम भी नहीं मानते लिया, हो, आप बाद में उनको मिर्जा मानते साहब की हो। कर रहा हूँ। देखें, बात सुन लेना भाई, मेरी बात सुन ले। आप उनको मानते हो, आपके मुताबिक दुनिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मुजद्दिद, या जो इस वक्त जो भी जिसके पास खुदा ताला से जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है ना, जो जिंदा रूह है, वो जंबा साहब है। आपने हमें ना उनकी तालीम बतानी है कि वो इस आयत नहीं से क्या मतलब लेते हैं। नहीं, देखिए हमारा ये बिलीव है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद नहीं, अलैहिस्सलाम आपका ये बिलीव नहीं है, अब आपका बिलीव है जंबा साहब। यार देखो फिर तो अनु मिर्जाई और दूसरे मुसलमान आप सही जंबा कहते हैं साहब ना। से, जंबा साहब की आप बात करें हमारे साथ, आपकी तरफ से बात करें ना। जंबा साहब की तरफ से बात करें ना, जंबा साहब को आप मानते हो। इख्तिलाफ हो गया। फिर हाँ, वही तो वो बात, तो जंबा साहब बीच में गांव का गुस्से एड़े हैं। जब एक जिंदा बात में बंदा मिर्जा साहब मौजूद की है, कर रहा हूँ। जंबा साहब मौजूद है, जिंदा बंदा जो अल्लाह से बातें कर सकता है, अल्लाह से पूछ सकता है, इस आयत का वो उनसे क्या, अल्लाह से पूछ के हमें बताएं कि वो क्या कहते हैं इस आयत के बारे में। तो मिर्जा साहब अल्लाह से पूछकर और सारी बातें मिर्जा तय साहब करते का थे। आपसे कोई ताल्लुक नहीं, अभी जंबा साहब को आपने वो मान ताल्लुक लिया है नहीं, भाई तो मेरे। खातमुल खुलफा मिर्जा साहब हैं कि जंबा साहब हैं? तो जंबा साहब फिर क्या है?
इमाम आखिरुज़्ज़मान कौन है? जंबा साहब क्या है फिर? जंबा जंबा साहब साहब क्या है? 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। आगे मुजद्दिद 16वीं अभी सदी तो का वही मुजद्दिद मौजूद है ना, आएगा, अभी तो मुजद्दिद वही 17वीं मौजूद सदी है का ना। मुजद्दिद आएगा। उन्होंने तो कहा कि मिर्जा मैं साहब इब्ने फिर भी ईसा, खातमुल खुलफा, जंबा साहब ने कहा कि मैं इब्ने ईसा भी मिर्जा हूँ ना। साहब फिर भी खातमुल खुलफा रहेंगे। बात सुने ना, अगर जंबा साहब ने भी तो कहा है ना कि मैं इब्ने मरियम ईसा भी हूँ। जब 18वीं सदी का मुजद्दिद आएगा ना, फिर भी मिर्जा साहब खातमुल जंबा खुलफा रहेंगे। साहब, यार बात सुन ले दिलदा जानी साहब, जंबा जो साहब जो है, जंबा इमाम साहब, महदी जो इमाम यार महदी मेरी भी है, तो बात जो सुन लेना, मेरी बात समझ जो नहीं रहे, आपके सर में क्या हो ये गया, आप मेरी एक बात सुन ले। इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इररिलेवेंट कह नहीं रहा है हूँ बात ये। आप आपने हकम मुझे अदल मानते बताना हैं ना है, मिर्जा साहब जंबा को, साहब से पूछ के कि वो शायद उनसे कहें, अल्लाह से पूछे, इसलिए कि उनका तो इस हम क्यों पूछे? डायरेक्ट हमारे ताल्लुक पास अल्लाह ताला मिर्जा के साहब की साथ है। तालीम मौजूद है, क्यों पूछें? तो यार उनका तो दावा ही नहीं कि मुझे यार सबसे इल्म मिर्जा दिया साहब गया तो कुरान का। दुनिया से रहलत फरमा गए ना, जंबा साहब तो जिंदा है ना। हाँ, तो उनका इल्म तो मौजूद है, तो वो कहते हैं वो कि मैं क़यामत ईसा तक के हूँ, लिए है। उन्होंने कहा है कि मैं इब्ने मरियम ईसा हूँ, जंबा साहब ने कहा है। हाँ, तो उन्होंने तो उनसे कहा है कहें कि कि मुझे कुरान का सबसे ज्यादा इल्म दिया हमें गया, उन्होंने उनका तो नहीं इल्म कहा। बताएं आप, जंबा साहब का मिर्जा इल्म साहब ने बताएं कि कहा वो है क्या हमें, कहते हैं। हमें मिर्जा साहब ने कहा है कि कुरान आपने का अगर सबसे अपना इल्म नहीं उनको बताना, दिया। आपको नहीं समझ आ रही, तो आप जंबा साहब का बताएं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नहीं, तो हम मिर्जा साहब का इल्म हमारे पास तो जंबा मौजूद है, साहब ने आप किधर उनसे जाना है? जंबा साहब ने तो चने किधर बेचने क्यों हैं। छोड़ते हो मिर्जा साहब की तालीम जंबा को? साहब ने चने बेचने हैं या रोड़े कुटने हैं? उन्होंने क्या और करना है? जंबा तुमने साहब ने, अंसर उनका रजा क्या को काम है अपना दुनिया के हकमुल अंदर? अदल बना लिया। अंसर और रजा जंबा तो साहब का तुम्हारा क्या हकमुल काम है अदल इस दुनिया के अंदर? फिर वो चने बेचने आए हैं, हकमुल अदल वो तुम्हारा मैंगो अंसर चूसने रजा आए हैं। है। जंबा साहब क्या करने आए हैं? उनका क्या काम है? उन्होंने क्या भाई करना है दुनिया के अंदर? हाँ, तो वो हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर किधर है रहे, उनकी? उन्होंने क्यों नहीं क्या डिस्कस करना है। करना चाहिए डिस्कस हमें? नहीं, क्यों नहीं हम बात करते हम करें डिस्कस? मैं यार करना चाहता हूँ आपके साथ डिस्कस। मिसाकुन नबीन एक की आयत जिंदा की हम बात इंसान कर है रहे हैं। जिसका डायरेक्ट तल्लुक, जिसके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, जिनके साथ दीवारें यार ये बातें क्या करती आप हैं। मिर्जाइयों को क्या ये मुसीबत है जिनके कि साथ आप बात दीवारें से दीवारें भागती हैं बातें हमेशा। करती हैं, जिनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, हाँ, जो अल्लाह ताला, चले जो अल्लाह ताला के साथ अच्छा, डायरेक्ट तो बातें जो करते हैं, चिड़ी मारता और सुअर मारता जिनके साथ उसको तो आपने हवाएं मसीह बातें मौद करती मान लिया। हैं, उनका इल्म बताएं क्या है? उनका इल्म बताओ क्या ये है? जो अच्छा चिड़ी मार और सुअर मार को वो मसीह मौद जब्बा क्यों मान है, लिया जो आपने? जब्बा है, उसका इल्म बताओ, बकवास नहीं करो। तो बकवास तो तुम करने शुरू की है, तुमने, मैंने तो उनका जब भी जिक्र ही नहीं कुत्ते किया। ना बनो, उनका इल्म बताओ। मैं बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ तो आपसे। हरामजादगी तो तुम कर रहे और हो अब। कुत्ते के बच्चे, मैंने तो कहीं उनका नहीं इल्म बात बताओ, की। जंबा का इल्म बताओ हमें, जिसको तुम ओए तो मानते हो। अच्छा, तुम अपने हिजड़े खलीफा और का इल्म सूरनी बताओ के चलो। बच्चे, हिजड़े खलीफा का उसका इल्म बताओ, चलो। सूरनी के बच्चे जो जिसको तुम मानते हो। उनके ऊपर उसका खंजीर खोता ने और काला सूरनी जनाब के करना बच्चे, करना उसका थी। इल्म बताओ, जंबा का। हाँ, कुत्ती के बच्चे, खंजीर ने काम ही है करना सी मैंने नहीं, एक मिनट। और सूरनी के बच्चे, उस जंबा का इल्म तेरे प्यो ने बताना है या तेरी माँ ने कब्र से उठ के बताना है हमें? और किसी सूरनी के बच्चे, तेरी नवासी जो सूरनी है ना, जो 12-12 औरतों के साथ, हिजड़ों के साथ वहां पे सोती है, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। वो भी हिजड़ों के साथ सोती है, हिजड़ा समझ के। 12-12 हिजड़ों के साथ तेरी नवासी सोती है। वो जंबा का इल्म तेरे प्यो ने बताना है हमें? कुत्ते के बच्चे, लानती, मुंह उठा के आगे इधर। कुत्ते के बच्चे, तेरे प्यो ने बताना है जंबा जो जिंदा यहाँ पे कुत्ते आप बैठा हुआ है, उसका इल्म तेरे प्यो ने बताना है। तेरा ईमान तो जंबा पे है, तो जंबा का इल्म तेरी माँ ने बताना है हमें आके। मिर्जा साहब, उस जंबे ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਕੀ ਖਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਚੂਹਾਨ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜੰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜੰਬੇ ਦਾ ਇਲਮ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और छड्डो सैफी साहब छड्डो। हाज साहब इत्थे हो तुसी? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहेब।